Hello everyone, welcome to the sessions. Welcome to TGT Mastery. ଆଜିର ସେସନ୍ସରେ ଆମର କ'ଣ ରହିଛି ଆଟମିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେଟ୍ 2 ରହିଛି। ବେସିକାଲି ଆମେ ଏଥିରେ ବୋହର୍ସ ଆଟମିକ୍ ମଡେଲ ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା, ତାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ କରିବା। ମୁଁ ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ ଅଲରେଡି ତୁମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଛି, ତ ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନେ ସବୁ ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିଥିବେ। ଦେନ୍ ଆମେ ଯିବା କୋଉଠିକି, ତମର ଏଇ ଯୋଉ ରହିଛି ବୋହର୍ସ ତା ରିଗାର୍ଡିଂର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଉଛି ବୋହର୍ସ ଆମର ଆପ୍ଲିକେବୁଲ କୋଉଠି ନା ଯେତିକି ସିଙ୍ଗଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ସ ଅଛନ୍ତି, ବୁଝିହେଉଛି। ସେଇ ଜିନିଷ ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଯେତିକି ତମର ସିଙ୍ଗଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ସ ଲାଇକ୍ ତମର କ'ଣ ଆସିବ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ସ ହେଇଗଲା, ହିଲିୟମ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଗଲା, ହିଲିୟମ 2+ ହେଇଗଲା, ଏଗୁଡ଼ାକରେ ତମର କିଏ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ବୋହର୍ସ ଲଟା ଆପ୍ଲିକେବୁଲ୍ସ ହେଉଛି, ବୁଝିହେଉଛି। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ବୋହର୍ସ ଆଟମିକ୍ ମଡେଲର ଦେଖିବା, ବୁଝିହେଉଛି ନା ବୁଝିବନି। ତ ଯିବା ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସକୁ। କ'ଣ ଦେଲା ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦ ଆଙ୍ଗୁଲାର ମୋମେଣ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ଦ ସେକେଣ୍ଡ ବୋହର ଅର୍ବିଟ୍ is x, then find out the angular momentum of the fast excited state of lithium. ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ତମର ଆଙ୍ଗୁଲାର ମୋମେଣ୍ଟମ୍ L ବା ତମର କ'ଣ MVR କହିଲେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ତମର MVR। MVR ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ NH/2π, ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଛେ, ବୁଝିହେଉଛି ନା ନାହିଁ। ସେ କ'ଣ କହିଲା, then find out the angular momentum fast excited second Bohr orbit of hydrogen atoms, ବୁଝିହେଉଛି ନା ନାହିଁ। ସେକେଣ୍ଡ ବୋହର ଅର୍ବିଟ୍ ଅଫ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆଟମ୍, କ'ଣ କହିଲେ, ସେକେଣ୍ଡ ଅର୍ବିଟ୍ ଅଫ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆଟମ୍। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଏଠି ତମକୁ ଏନ୍ ଟା କ'ଣ କହିଲା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 2 କହିଲା। ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କହିଛି, ଆଙ୍ଗୁଲାର ମୋମେଣ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡ ବୋହର ଅର୍ବିଟ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ସ ଇଜ୍ x, ମାନେ MVR ଟା ତମକୁ କ'ଣ ଦେଲା, x is equal to NH/2π, ମାନେ 2h/2π, that means h/2π ତମର, ବୁଝିହେଉଛି ନା ନାହିଁ। କ'ଣ କହିଲେ, h/2π। ତାପରେ ସେ କ'ଣ ଦେଇଛି, then find out the momentum, angular momentum in fast excited state of lithium 2+, fast excited state, କ'ଣ କହିଲେ, fast excited state of lithium 2+, ମାନେ କ'ଣ, that is n is equal to କେତେ, that is ତମର 2, ବୁଝିହେଉଛି ନା ନାହିଁ। n is equal to 2, କାହିଁକି ନା ତମର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ସେଇଟା କେତେ ରହୁଛି, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ n is equal to କେତେ, 1, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ n is equal to କେତେ, that is ତମର 1। ତାହେଲେ ଆଙ୍ଗୁଲାର ମୋମେଣ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ଲିଥିୟମ 2+ କେତେ ଆସିବ, that is 2h/2π। ତାହେଲେ କେତେ ଆସିଗଲା, h/2π, ବୁଝିହେଉଛି, କେତେ ଆସିଗଲା, that is h/2π। ତା ଅର୍ଥ ଏଇ ଦି ଜଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, n ତମର କେତେ, 2 2 ଆସୁଛି। n ଟା ତମର କ'ଣ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି କି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ତମର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟମ ନମ୍ବର। ତାହେଲେ ମୁଁ କହିପାରିବି ଯେ ଦି ଜଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତମର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କ୍ୱାଣ୍ଟମ ନମ୍ବରଟା ସେମ୍ ବୋଲି। ହଁ ସାର୍ କହିପାରିବେ। ଯଦି ତମର ସମାନ ଆସୁଛି, ଦେଖ h/2π h/2π, ତାହେଲେ ଆଙ୍ଗୁଲାର ମୋମେଣ୍ଟମଟା, ତମର ଆଙ୍ଗୁଲାର ମୋମେଣ୍ଟମ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ସର କେତେ, ତମର ଆଙ୍ଗୁଲାର ମୋମେଣ୍ଟମ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ସର କେତେ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ସର x, ତାହେଲେ ଆର କେତେ ଆସିବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ତମର x ଆସିବ। ବୁଝି ହେଲା ନା ବୁଝି ହେଲାନି, ଏତିକି ଜିନିଷ ଜାଣି ହେଲା ନା ନାହିଁ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଆସିବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅପସନ୍ 4। ତାପରେ ଚାଲ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସକୁ ଯିବା। ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ୍ସ ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ସ ଡେନ୍ସିଟି, କ'ଣ କହିଲା, ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ୍ସ ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଭେଲୋସିଟି and radius for a orbit in an atoms, ହେଲା। ଭେଲୋସିଟି ଆଉ କୁ ଆମେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା, ବୁଝିହେଉଛି ନା ନାହିଁ। ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛେ, MVR is equal to NH/2π। ଭେଲୋସିଟି ଆଉ r ତମର ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହେବ, ତାହେଲେ ଇଏ କେତେ ଆସିବ, NH/2πm ଆସିବ। କେତେ ଆସିବ, NH/2πm ଆସିବ। ସେ କହିଛି ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ ଟୁ ମାସ୍, ତମର କ'ଣ କହିଲା, ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ ଟୁ ମାସ୍ ହବ ନାହିଁ, ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ ଟୁ ସ୍କୋୟାର ଅଫ ଦ ମାସ୍ ହବ ନାହିଁ। ଭି ଟା ତମର କ'ଣ ଆସିବ, ଇନଭର୍ସଲି ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ କାହା ସହିତ, ତମର VR ଟା ଟୋଟାଲ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ୍ସ, ତ ମାନେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଫ ଭେଲୋସିଟି ଆଣ୍ଡ ରାଡିୟସ୍ ଅଫ ଅର୍ବିଟ୍, ଇଏ କ'ଣ ଆସିବ, 1/m ମାସ୍ ସହିତ ଇନଭର୍ସଲି ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ ଆସିବ, ବୁଝିହେଉଛି। ଇନଭର୍ସଲି ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ ଆସିଲେ କୋଉ ଅପସନ୍ସ ଆସିଯିବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅପସନ୍ 3।
तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपन को कौन देला द रेडियस ऑफ ए सेल for hydrogen atom is 4.761 angstrom the value of n तमरो रेडियस टा केमिति आसे ना सर 0.529 into n square by z angstrom n square by z angstroms बुझियो जी तो तमरो देई जे रेडियस टा देई जे केते ये तमरो देई जे केते 4.761 is equal to केते 0.529 into n square by z z टा केते आसीबो हाइड्रोजन्स पे z टा एटॉमिक नंबर केते हाइड्रोजन्स पे दैट इज 1 आसीबो ताले n स्क्वायर इज इक्वल टू केते आसी गेला 4.761 बाय 0.529 ताले n स्क्वायर इज इक्वल टू केते आसी होजी दैट इज केते आसी जीवो दैट इज तमरो 9 आसी जीवो हला एटा को डिवाइड कर देले ये तमरो केते आसुची दैट इज तमरो 9 आसुची ताले n इज इक्वल टू केते आसीबो ना सर 3 आसीबो दैट इज ऑप्शन 1 बुझियो जी तापरे इन बोहर एटॉमिक मॉडल radius of first orbit of hydrogens is 0.053 nanometer then radius of third orbit of lithium 2 plus lithium 2 plus माने भी से तुमरो गोटे इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई करछि एंड मो तुमको स्टार्टिंग रो ही आजिरो कहितली जे तुमरो बोहर ऑर्बिट एप्लीकेबल्स कोड होछि ना जेति की तुमरो सिंगल इलेक्ट्रॉन्स अछंती कोन कहले जेति की तुमरो सिंगल इलेक्ट्रॉन्स अछंती ता अर्थ आर एन डा तुमरो कोन आसुछि हाइड्रोजन्स ये पे जदि हम देखिबा दैट इज r1 into n1 n square by z तुमरो बुझियो छै ना नहीं so देछि कोन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स दैट इज तुमरो rn डा कोन ए जो rn डा लिखिली ये तुमरो कोन रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ये कोन रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट्स बुझियो छै ना नहीं तबरे जदि तुमरो हाइड्रोजन्स फर्स्ट ऑर्बिट्स पे देला ये तुमरो केते आसीबो दैट इज तुमको से देछि r1 डा केते दैट इज 0.053 नानोमीटर तुमको देछि n डा तुमरो कोन रिप्रेजेंट करछि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये तुमरो कोन रिप्रेजेंट करछि दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और तुमरो कोन हम देखो कोछ दैट इज ऑर्बिट नंबर बोली z टा तुम जानि जे कोन दैट इज तुमरो एटॉमिक नंबर बोली ये कोन जानि जे तुमरो एटॉमिक नंबर बोली बुझियो जी ताले ये केते आसी जीवो तुमरो देखो सिंपल जिंस फर्स्ट एटम पे तुमरो r1 दे देला केते एति दे दीची हला ताले लिथियम 2 प्लस पे केते आसीबो तुमरो z इज इक्वल टू केते लिथियम हाइड्रोजन हीलियम लिथियम z इज इक्वल टू 3 से देछि कोन देन द थर्ड ऑर्बिट्स माने n इज इक्वल टू 3 देछि तुमरो ताले r3 डा केते आसीबो तुमरो 0 पॉइंट्स r1 जगह केते पकेबी 053 into n जगह केते पकेबी 3 रो स्क्वायर बाय z जगह केते पकेबी दैट इज 3 बुझियो जी ताले ये केते आसीबो 0.053 into 3 केते आसीबो 0.159 नानोमीटर 0.159 नानोमीटर्स बुझियला तापर चलो नेक्स्ट अरे ऑप्शन ठीक माइल निबा ऑप्शन 1 तापर द रेडियस ऑफ फर्स्ट 3 बोहर्स ऑर्बिट्स कोन कहला द रेडियस ऑफ फर्स्ट 3 बोहर्स ऑर्बिट फर्स्ट 3 बोहर ऑर्बिट रो रेडियस टा केते आसीबो बोले से पछाला प्रथम जिंस फर्स्ट 3 ऑर्बिट्स माने n इज इक्वल टू 1 n इज इक्वल टू 2 n इज इक्वल टू केते दैट इज 3 तमे जानि जे कोन सिंपल जिंस देखो म एठी तमरो फार्मूला जो देखितले दैट इज rn तमरो केते आसुची 0.529 into n square by z armstrong तार तो rn डा तमरो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सहित होची दैट इज n स्क्वायर सहित तार तो r1 तमरो r2 r3 इज इक्वल टू केते आसीयो n1 रो स्क्वायर n2 रो स्क्वायर n3 रो स्क्वायर दैट इज 1 रो स्क्वायर 2 रो स्क्वायर
3 ର ସ୍କୋୟାର ତାହେଲେ କେତେ 1:4:9 ବୁଝିହେଲା ନା ବୁଝିହେଲାନି ମତେ କୁହ। ଏତିକି ଜିନିଷ ଜାଣି ହେଲା ନା ଜାଣି ହେଲାନି। ତାପରେ ଯିବା କଣ ଦେଇଛି लिथियम 2 प्लस ପାଇଁ ତମର R2 ଆଉ ଇଏଟା କେତେ ତମେ ଜାଣିଛ କେତେ Rn ଟା ତମର डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n स्क्वायर सहित Rn ଟା इनवर्सली प्रोपोर्शनल का सहित दैट इज तमरो z सहित बुझियोजी ताहले R2 बाय Rf इज इक्वल टू केते आसीयो 2 रो स्क्वायर बाय 3 रो स्क्वायर दैट इज केते 4:25 बुझिहेला ना ताहले केते आसीयो तमरो दैट इज 4:25 तापर चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस को The ratio of radii of two Bohr orbit of hydrogen atom is 4:1 बोले तुमको दला बुझे रेशियो ऑफ radii तमे जानी छ कोन Rn दा तमरो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का सहित n स्क्वायर सहित हेगल तार तो R1 बाय R2 इज इक्वल टू केते आसीयो n1 रो स्क्वायर बाय n2 रो स्क्वायर ताले ये केते आसीयो तमरो ये केते देछि 4:1 देछि बुझियो ना नहीं तार तो n1 बाय n2 रो केते आसी जीवो 4/1 रो रूट ओवर आसी जीवो ये केते आसी जीवो 2/1 आसी जीवो केते आसी दैट इज तमरो 2:1 व्हाट कुड बी देयर नोमेनक्लेचर तमे जानि छ कोन k सेल पई n रो वैल्यू 1 l सेल पई n रो वैल्यू 2 m सेल पई n रो वैल्यू 3 n सेल पई n रो वैल्यू केते दैट इज 4 एटा तमे जानि छ बुझियो ना नहीं तार तो से तुमको 1 आउ 2 देछि 2:1 देछि 2 माने कोन दैट इज l आसी जीवो बुझियो ना नहीं आउ 1 देछि माने k आसी जीवो तुमरो बुझियो जे ना बुझियो नहीं l आउ k तुमरो हल l आउ k तुमरो आसियो तो कोन आसी जीवो l आउ k तुमरो आसी जीवो बुझियला तब चलो समान क्वेश्चन दे दीजिए रे ओके ओके ये भी तुमरो l k तुमरो आसियो हां समान क्वेश्चन हो जाइतला चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चंस कोन होला द वेलोसिटी of electrons in the third excited state of barium 3 plus velocity दला बुझियो जी velocity टा हमें कोन जानि छे velocity टा हमें कोन जानि छे that is 2.188 into 10 to the power 6 into z by n बुझियो जी ना नहीं z टा तमरो एटॉमिक नंबर बुझियो जी ताले इज इक्वल टू केते आसीयो 2.188 into 10 to the power 6 into थर्ड एक्साइटेड स्टेट तुमको देछि बुझियो ना नहीं तमरो थर्ड एक्साइटेड स्टेट माने मु तुमको कहिछि एक्साइटेड स्टेट देछि माने तुम कोन करिवो दैट इज n+1 करिवो कोन करिवो n+1 माने थर्ड +1 दैट इज केते 4 करिवो बुझियो ना नहीं एंड तुमको देछि कोन बेरिलियम्स रे तमरो z इज इक्वल टू केते आसीबो दैट इज 4 आसीबो ताले ये केते आसीबो 4/4 बुझियो जी ताले ये केते आसी जीवो कटि जीवो समस्ते 1.88 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड्स बुझियो जी ना नहीं एतिक देछि हला किंतु हमको से देखो किलोमीटर देछि आमे जानि जे कोन 1 किलोमीटर इज इक्वल टू केते 10 to the power 3 मीटर्स ताले 1 मीटर इज इक्वल टू केते आसीयो 10 to the power -3
किलोमीटर आसो बुझे ना ताहले माने 1 किलोमीटर केते आसुची 1000 मीटर तुम जानिछ 1 मीटर केते आसियो 1/1000 किलोमीटर बुझे ना ताहले 10 टू द पावर 6 केते आसियो ना 10 टू द पावर 6 बाय 10 टू द पावर 3 आसियो कटि जो 10 टू द पावर केते आसियो दैट इज तुमरो 3 आसियो बुझे एतिकी ने केते आसियो तुमरो 2.188 into 10 to the power 3 किलोमीटर सेकेंड इनवर्स एतिकी तुम आंसर आसीजो बुझीगला ना बुझीगलानी जानी हला ना जानी हलानी तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन चलो the Bohr orbit radius of the hydrogen atom n is equal to 1 approximately एतिकी तुमर आर एन टा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सहित दैट इज तुमर एन स्क्वायर सहित ताहले आर एन टा को मु कोन कहि परिबी r1 into n स्क्वायर कर परिबी r1 माने 0.529 तुमर तुमर देइची कोन r1 तुमको देइची केते द बोर ऑर्बिट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम n is equal to 1 एतिकी भाई तुमर जेटी हां तो लिखि देइची केते 0.530 आर्मस्ट्रांग तुमर देइची बुझे होछ ना नहीं बा तुमर मु एटा कते कर परिबी 0.530 आर्मस्ट्रांग into n स्क्वायर माने केते दैट इज 2 रो स्क्वायर द बोर रेडियस फॉर द हाइड्रोजन एटम्स ओ हाइड्रोजन एटम्स पे देइची ना फास्ट एक्साइटेड सेट माने तुमर 2 आसी जीवो बाय तुमर केते 1 तुमर बुझे होछ ना नहीं ताले केते आसीयो 0.530 आर्मस्ट्रांग into 4 मल्टीप्लाई कर दियो केते आसीयो 2.12 आर्मस्ट्रांग कौन कहले 2.12 आर्मस्ट्रांग बुझिगला ना नहीं तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन को चलो द रेडियस ऑफ the ratio of radius of fast orbit in hydrogens to the radius of the fast orbit in the deuteriums तमे जानिछ कोन r टा तमरो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर सहित इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू का सहित दैट इज तमरो z सहित बुझे होछ ना नहीं ताले तमरो हाइड्रोजन्स पे देइछि हला हाइड्रोजन्स पे देइछि ताले ये केते आसियो 1/1 ना 1 आसीजियो हला तापरे तमरो देइछि रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ फास्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन्स एंड फास्ट ऑर्बिट ऑफ ड्यूटेरियम्स रे ड्यूटेरियम टा कोन तमरो आइसोटोप ऑफ द हाइड्रोजन्स ताले z इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू 1 आसियो कोन कहले ड्यूटेरियम्स टा होछि कोन गोटे दैट इज आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन्स बोले आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन्स तल n इज इक्वल टू 1 आसियो z इज इक्वल टू केते आसियो 1 आसियो बुझे होछ ना नहीं तले ये केते आसिला 1/1 दैट इज 1 सो रेशियो पचारछि तले 1:1 ही आसियो बुझेला ना बुझेला नहीं तो चलो नेक्स्ट फॉर हाइड्रोजन्स लाइक एटम्स फॉर हाइड्रोजन्स लाइक सिस्टम्स द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एतिकी तमर देइछि for any hydrogens like systems केते आसियो को तम वेलोसिटी टा जानि छ कोन वेलोसिटी इज इक्वल टू 2.188 into 10 to the power 6 z by n बुझो ना देखो तुम एठी मु लिखि देले से फार्मूला टा बुझो जे एठी हला से फार्मूला रिगार्डिंग रही आसियो तुमरो सकाळे क्वेश्चन ए तुमरो कोन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू का सहित दैट इज तुमरो n सहित ताले v1 is to v2 is to v3 is equal to 1/1 1/2 1/3
ताले ये केते आसीजिवो तमरो 1:1/2 इष्टु 1/3 बुझीगला ना बुझीगलानी एतिकी जिनस जानी हला ना जानी हलानी बुझंतु तरफ द एनर्जी ऑफ सेकंड बोर ऑर्बिट एइटर आंसर करो द एनर्जी ऑफ सेकंड बोर ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स तुम्हें जानिछ एनर्जी टा तुम इनवर्सली प्रोपोर्शनल का सहित दैट इज एन स्क्वायर सहित बुझे ना नहीं एनर्जी टा तुम का सहित दैट इज एन स्क्वायर सहित बुझे तुम सर केमी अरे तुम टोटाल एनर्जी टा कौन कि ई एन इज इक्वाल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर तुम बुझे तार अर्थ तुम ये कौन आसो हैज द एनर्जी फॉर फोर्थ ऑर्बिट शुड बी फोर्थ ऑर्बिट दैट इज फोर्थ बाय द एनर्जी ऑफ सेकंड ऑर्बिट देछि दैट इज तुम E2 तार अर्थ ये केते आसीजिवो n2 रो स्क्वायर बाय n4 रो स्क्वायर बुझे ना E4 टा तुमको केते देछि ना -328 बाय E2 n1 टा केते सेकंड ऑर्बिट रो दैट इज 2 स्क्वायर फोर्थ रो केते हेंस द ऑर्बिट फॉर फोर्थ ऑर्बिट्स दैट इज 4 रो स्क्वायर्स ताले -E/4 बाय सॉरी -328 E2 by 4/16 that is कहते 1/4 that is बोलबाल पके लगी ओहो ओ एड बड़ा मिस्टेक मु करछि रे गोटे मिनिट ठीक थला प्रोसीजर ठीक थला आमे वैल्यू भूल पके जे बुझियो छै से मते देइथला कोन एनर्जी ऑफ द सेकंड बोहर ऑर्बिट्स ये ठीक तो थला हला ए केते देछि 328 काई इंडी करले n2 टा केते तमरो दैट इज 2 रो स्क्वायर बाय केते 4 रो स्क्वायर दैट इज 4/16 दैट इज 1/4 तार अर्थ E4 टा केते आसीबो -328/4 केते आसीबो -82 किलो जूल मोल बुझेला ना बुझेला तब चलो नेक्स्ट नन हाइड्रोजन एटम इफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ग्राउंड स्टेट तुमरो -13.6 देछि द एनर्जी ऑफ सेकंड ऑर्बिट पई ताले प्रथम पई देछि केते दैट इज तमे जानि छ एनर्जी टा तुमरो कोन -13.6 n स्क्वायर बाय n स्क्वायर वर्ष मिस्टेक आ जाउ छ बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट रे से देछि टी तमरो इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट देछि माने सदा बेले जानो जे तमरो n इज इक्वल टू 1 बोले ग्राउंड स्टेट देछि माने से तमरो n इज इक्वल टू केते दैट इज तमरो 1 बोले हला तब देन एनर्जी ऑफ द सेकंड एक्साइटेड स्टेट
जो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट कहला मु तुमको कही एक्साइटेड स्टेट कहबो माने तुम कौन करिवो दैट इज n इज इक्वल टू x प्लस 1 कर दो ना केते 2 प्लस 1 दैट इज केते 3 तुमरो ताले e3 डा केते आसीबो -13.6 बाय 3 रो स्क्वायर दैट इज -13.6 by 9 nearly equal to -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बुझी दैट इज ऑप्शन 1 तुमको सर एन टाउ कहीं जेड टाउ कहीं ना लेनी अरे हाइड्रोजन एटम देछि ना जेड टा केते आसीबो तुमरो जेड टा 1 आसीबो हला तब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन the ratio between kinetic energy and the total energy of electrons of hydrogen atoms तुमरो काइनेटिक एनर्जी कथा से कहला तुमरो काइनेटिक एनर्जी टा कोन देखो दैट इज k z e स्क्वायर बाय 2r और टोटल एनर्जी टा केते कहला माइनस काइनेटिक एनर्जी z स्क्वायर बाय 2r तार तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी एमती भी कही पारि बुझे ना नहीं तार अर्थ काइनेटिक एनर्जी बाय टोटल एनर्जी केते आसीबो काइनेटिक एनर्जी बाय टोटल एनर्जी केते माइनस के ई दैट इज 1 बाय -1 जो जी ताले केते आसीबो 1:-1 बुझे ना नहीं 1:-1 तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन द सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम कैलकुलेट द डबल ऑफ टोटल एनर्जी इन द फर्स्ट स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स तुमरो एनर्जी टा ही तुमको कौन कहला जदि हमें देखिबा En इज इक्वल टू कौन कहला -13.6 into z स्क्वायर बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट बुझो जेड जदि तुमरो 1 आसुची एन डा केते आसीबो दैट इज तुमरो 2 कहीं एन डा कहीं 2 आसुची कहीं मते फास्ट एक्साइटेड स्टेट देछि कोन देछि फास्ट एक्साइटेड स्टेट देछि ताले E इज इक्वल टू केते आसीबो -13.6 into 1 स्क्वायर z तो तुमरो बुझो ये केते आसीबो 2 स्क्वायर दैट इज -13.6 into 1/4 ताले केते आसीबो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बुझो ना -3. Oh, sorry. Then calculate the double of the total energy. Double है 2 multiply कर दिया होगा 2 multiply कर दिया होगा -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट going for KL n cell in case of hydrogens atoms K और n cell पे आप तो 1 KL m n आप केते 4 के दैट इज तुमरो n टा बुझेला ना बुझेलानी से कौन देछि गोइंग फॉर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस टोटल एनर्जी डिक्रीजेस हला काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस टोटल एनर्जी डिक्रीजेस एमदिया सब देछि पोटेंशियल एनर्जी कथा भी देछि आमे किंतु काइनेटिक एनर्जी बोली कोन जानि छे दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोन दैट इज 1 by n रो स्क्वायर बुझो ना नहीं तार तो ये डिक्रीज करिवो काइनेटिक एनर्जी तमरो डिक्रीज कला तबरे तमरो टोटल एनर्जी कथा तुम देखियो जदि टोटल एनर्जी रे भी ये तमरो कोन आसीबो दैट इज -1 by n स्क्वायर बुझो ना नहीं एठी टोटल एनर्जी कोन होबा कथा दैट इज इंक्रीज जेहेतु नेगेटिव अछि सेति पई ये इंक्रीज होबा कथा ये तमरो ठीक अछि हला
ऑप्शन 1 ही तुम आंसर आसीबो हम देखि दबा टिके सब जिंस पोटेंशियल एनर्जी माने कोन कहला पोटेंशियल एनर्जी ये तुम कोन आसुची -1/n रो स्क्वायर बुझियो ना ने ताले पोटेंशियल एनर्जी टा भी तुम डिक्रीज न होई कोन हो इंक्रीज हो तुमको सर इनवर्सली बा डिक्रीज होबा कथा माइनस अछि ना बुझियो ना ने सेति पे ताबरे the maximum frequency of emissions obtained for the transitions कोदि पे आसीबो देखो देखो तुमरो एमिशन टा केते बेले हबो हमरो एमिशन टा केते बेले हबो ताकू टिके आगो देखि दबा एमिशंस हमर केते बेले हबो जते बेले when an electrons okay when an electrons drop from a higher energy level to lower energy level बुझे ना नहीं दैट इज समरो लोअर एनर्जी लेवल हला उड़े आसो तमे जानि छ कोन दैट इज तमरो डेल ई टा तमरो आसु छ कोन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू दैट इज 1/n1 स्क्वायर -1/n2 स्क्वायर ए जिंस तमे जानि छ तो प्रथम ऑप्शंस को जबा n इज इक्वल टू 2 टू n इज इक्वल टू 1 ताले डेल ई टा केते आसीबो तमरो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/1 स्क्वायर -1/2 स्क्वायर बुझियो जी ताले ये केते आसीबो डेल ई टा केते आसीबो तमरो 1 -1/4 हला ने केते आसीबो 0.75 हला ये तमरो ऑप्शन 1 टा हला ऑप्शन 2 टा तमरो कोन देला n इज इक्वल टू 6 बोली देछि ताले डेल ई टा तमरो कोन आसीबो 1/2 रो स्क्वायर -1/6 रो स्क्वायर बुझियो जी जोटा केते आसीबो तमरो दैट इज डेल ई इज इक्वल टू केते आसी होजी 0.25 1/4 टा 1/36 टा केते आसीबो 0.0278 बुझियो जी डिजन देखो माइनस कर दो केते आसीबो 0.222 बुझियो जी ना नहीं तबरे थर्ड ऑप्शंस n is equal to 1 n is equal to 2 देछि n is equal to 1 to n is equal to केते देछि दैट इज 2 देछि तार तो डेल ई टा केते आसीबो दैट इज 1 बाय केते आसीबो 2 रो स्क्वायर -1/1 दैट इज डेल ई इज इक्वल टू केते आसीबो 1/4 -1 ताले 1 -4/1 माइनस आसुची बुझियो ना नहीं कोन आसुची दैट इज तमरो माइनस आसुची हला ये केते आसीबो -3 आसीगला सेमति n इज इक्वल टू 2 n इज इक्वल टू 2 हेले आउ n इज इक्वल टू 6 दैट इज तमरो डेल ई टा केते आसीबो 1/n1 स्क्वायर माने 6 रो स्क्वायर बुझियो ना नहीं -1/2 रो स्क्वायर ताले 1/36 -1/4 ताले ये केते आसीबो 36 1 -9 आसीबो -8/36 तमे कहू छी फ्रीक्वेंसी सहित रिलेशन टा कोन देखो फ्रीक्वेंसी सहित तमरो रिलेशन टा कोन दैट इज डेल ई टा तमरो कोन h न्यू बुझियो ना नहीं ताले मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ताले डेल ई तमरो जेते बढ़िबो फ्रीक्वेंसी टा भी तमरो सेते बढ़िबो बुझियो ना नहीं एटा जेते बढ़िबो सेटा सेते बढ़िबो ताले सबडो अधिक के अछि दैट इज 0.75 कोटा दैट इज ऑप्शन 1 टा तापर चलो नेक्स्ट
if the ionization energy of hydrogens is ଏତିକି kilocalorie per mole, then the energy of the electrons in the second excited state. आयनाइजेशन एनर्जी कौन कहूँ ना ग्राउंड स्टेट रो गोटे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने जी एनर्जी दरकार ताको आम कहूचे है बुझे ना नहीं तुम एन इज इक्वाल टू 1 देछि एन इज इक्वाल टू केते देला तुमरो दैट इज 1 दे देला टू एन इज इक्वाल टू कोन देला दैट इज इन्फिनिटी देला कोन देला दैट इज तुमरो इन्फिनिटी सेकंड एक्साइटेड स्टेट बुझे ना नहीं तुमरो ग्राउंड स्टेट कथा जदी कहबी तुमरो ग्राउंड स्टेट कथा जदी कहबी जे ग्राउंड स्टेट रे n इज इक्वल टू 1 ताले फास्ट एक्साइटेड स्टेट कहीं केते आसीबो n इज इक्वल टू केते 2 आसीबो सेकंड एक्साइटेड स्टेट जदी दबो सेकंड एक्साइटेड स्टेट जदी तुमको दला ताले कोन करिवो n इज इक्वल टू केते दैट इज तुमरो 3 बुझी होछ ना नहीं तार तो आमे जानि जे कोन en इज इक्वल टू कोन e1 बाय n स्क्वायर बुझी e1 टा तुमको केते देछि ना सर 313.8 देछि बुझी ना नहीं एति तुमको देछि किंतु तमे जानि जे कोन ए जो तुमको देछि आयनाइजेशन एनर्जी amount of energy required from an isolated gaseous atom in the ground state रो हम जतले बाहर करछे गोटे इलेक्ट्रॉन ताको हम आयनाइजेशन एनर्जी कहूचे बुझियो ना नहीं तार अर्थ आयनाइजेशन एनर्जी टा हम केमिति बाहर करबा दैट इज e इंफिनिटी माइनस e1 e इंफिनिटी रे केते आसीबो 0 माइनस e1 ताले ये तमरो e1 टा ताले तमरो केते आसी गला दैट इज 31 माइनस 313.8 हला कहीं ना ए जगह पके दियो ए जगह पके देले माइनस टा ही रहइबो तमरो बुझियो ना नहीं केते रहइबो दैट इज तमरो माइनस टा ही रहइबो हला ताले e3 टा पई केते आसीबो माइनस 31.3 बाय n स्क्वायर माने केते 3 रो स्क्वायर दैट इज माइनस 313.8 बाय 9 ताले केते आसीबो माइनस 78.45 किलो कैलोरी पर मोल यूज ना नहीं ताले कोन आसीबो दैट इज ऑप्शन 2 और चलो नेक्स्ट व्हिच among the following electrons transitions will require the largest amount of energy in a hydrogen atoms को केते आसीबो if the potential energy sorry which upon the following electron will require a largest amount of energy सेटा जेमिति बाहर करथलो सेमिति बाहर करिवो बुझियोछि आमे डेल ई टा कोन बाहर करि परिबा दैट इज 13.6 into 1 by n square lower minus 1 by n square higher यूज इतने की भी ताले n is equal to 1 n is equal to 2 देछि ताले डेल ई टा केते आसीबो 13.6 ऑप्शन 1 टा करजे एटा हला ताले लोअर टा केते आसीबो दैट इज 2 रो स्क्वायर माइनस 1 बाय सॉरी ये 1 आसीबो 1 स्क्वायर 2 रो स्क्वायर ताले केते आसीगला तमरो दैट इज 13.6 ये केते आसीगला 1 माइनस 1 बाय 4 तमरो माने 3 बाय 4 3 बाय 4 हेले केते आसीबो दैट इज तमरो 0.75 ताले एटा को मल्टीप्लाई कर दियो केते आसीबो 10.2 इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट्स बुझियोछि तबरे ऑप्शन 2 टा को जिबा ऑप्शन 2 रे केते आसीबो n is equal to 2 to n is equal to 3 देछि ताले डेल ई टा केते आसीबो 13.6 into 1 by 2 रो स्क्वायर माइनस 1 by 3 रो स्क्वायर हला ताले ये केते आसीबो दैट इज 13.6
1/4 minus 1/9 মানে 13.6 into 5/36 that is কত আছে 1.89 electron volt। তারপর অপশন থার্ড n is equal to infinity to n is equal to 1 that is del E টা কত আছে 13.6 into 1/1 square minus 1/infinity square that means কত আছে 13.6 into 1 তোমার তাহলে 13.6 eV অপশন 4 টা কত আছে that is del E না এটা ହେଲା কত আছে 13.6 into 1/0 square minus 1/5 square that is 13.6 into 1/n minus 1/25 তাহলে 16/25 আসিयो 16 কেটে আসিও that is 225 that is 13.6 into 16/225 তাহলে কেটে আসিও 0.97 ইলেকট্রন ভোল্ট ହେଲା ବୁଝିହଉଛି ନା ତାହେଲେ କୋଉଠି ଅଧିକା ଆସିଛି ଦେଖ ଇଏ 1.989 ଫାର୍ଷ୍ଟ ତମର 10.8 ଇଏ ତମର ଅଧିକା ଆସିଲା that is option 3 ଟା ବୁଝିହଉଛି option 3 ଟା ତମର ଅଧିକା ଆସିଲା option 3 ଟା ହେଲା ତାପରେ ଚलो ନେକ୍ସଟ क्वेश्चंस को चलो if the potential energy of electrons of hydrogen atom ତମର ଦେଇ ଦେଇଛି ତାହେଲେ ତମେ ଜାଣିଛ କଣ En ଟା ତମର କଣ potential energy by 2 ବୁଝିହଉଛି ନା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଇଏ କେତେ ଦେଇଛି -3.02/2 that means କେତେ ଦେଲା -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ବୁଝିହଉଛି ତାହେଲେ En ଟା କେତେ ଆସିବ -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट ତମର En ଟା କେତେ ଦେଇଛି the potential energy ଆମେ ବାହାର କଲେ ନା En ଟା that is En କେତେ -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट En ଟା କେତେ ଦେଇଛି -1.51 is equal to -13.6/n²। তাহলে n² is equal to -13.6/-1.51 আগে সলভ করে দিলে কত n is equal to 3 তাহলে n is equal to কত আসবে that is 3 ବୁଝିହେଲା ନା ବୁଝିହେଲାନି ଏତିକି ଜିନିଷ ଜାଣି ହେଲା ନା ଜାଣି ହେଲାନି ସେମିତି लो फ्रिक्वेंसी ଦେଇଛି ମାନେ ଯାହାର ଏନର୍ଜି କଣ ଥିବ that is କମ ଥିବ ଆସିବ ନା ଆସିବନି ମତେ କୁହ ଏଟା ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୋମୱାର୍କ ରହିଲା ହେଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣେଇବେ ଦେଖା ହବା ଗୋଟେ ନୂତନ ସେସନରେ ବୁଝୁଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ମୋର କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଏମସିକ୍ୟୁ ବ୍ୟାଚ୍ ଥିଓରି ପ୍ଲସ୍ ଏମସିକ୍ୟୁ ରହୁଛି ଯୋଉଥିରେ ବୁଝୁଛି କଣ କହିଲେ that is ତମର ଥିଓରି प्लस एमसीक्यू रोचे जो थे ସେଇଟା ଯଦି କିଏ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ମତେ ଏଇ ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ ଯାହାର ଭ୍ୟାଲିଡିଟି କେତେ ରହୁଛି ତମର until your selections ଆମର ଟପିକ ୱାଇଜ ଚାଲୁଛି ପୁଣି ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଷ୍ଟେଟ ହଉଛି ବେସିକ କନସେପ୍ଟ ऑलरेडी କରେଇଛି ତମେ ଦେଖି ପାରୁଥିବ ବେସିକ କନସେପ୍ଟ ଆମେ 5ଟା ପାଖାପାଖି କ୍ଲାସ କଲେ ଟପିକ ୱାଇଜ ତାପରେ ତାର ଫୁଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ବି କରେଇଲେ ସେଇ ଭଳିଆ ହିଁ ସବୁ ଟପିକ ର ହବ ବୁଝୁଛି ଯଦି ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବ ମତେ ଏଇ ନମ୍ବରରେ ମତେ মেসেজ করিও 73811605 বুঝুছি দেখা চিলড্রেন বাই বাই থ্যাংক ইউ जय श्री जगन्नाथ।